Everybody, and thank you for taking time to be with us here today. It was about a few years ago when the late Jagjit Singh passed away. Impromptu, we did a show called Yadon Ka Safar. And when I watched the show, that was one show where I saw, you have film awards, people come and walk out, but nobody moved that day. And I realized the power of music. We've done a lot of music shows, and then we said we need to do something on the music platform because there are a lot of reality shows on music and things like that, but there is no platform to give new singers an opportunity to be showcased on national television. So we thought of the idea of Suron Ke Rang Colors Ke Sang, and I was speaking to Bhushan ji and Vinod ji, and I said, if we are going to do something like this, we need to start it with a big bang. And when you think of music, I don't think you can think of a bigger name than Sri Gulshan Kumar, whose his contribution to our industry, whether it is bhajans, whether it's folk music, whether it is film music, I think is unparalleled. And so I felt that this would be the best platform. It's 30 years since he's passed away, and we thought that why don't we come together? So T-Series and us, and we have Bhushan ji now who's carrying his legacy forward. So we said, why don't we come together and launch this? This will not be the only show that will be there. This will be the launch of Suron Ke Rang Colors Ke Sang. We plan to have 3 or 4, depends on, we'll see different shows in a year. But one of the things I want to commit is Suron Ke Rang Colors Ke Sang will be also a platform for showcasing all new talent that we want to encourage and bring to our industry. Because I think one of the things Gulshan ji had done, he brought unknown people and gave them a platform. He brought them into the mainstream. I think we want to carry that legacy forward. As a television channel, we have a social responsibility, and we believe there are hundreds and millions of young, talented singers in this country who don't get an opportunity, just like T-Series gives them a platform to come into the film world or to do other shows and things like that. We believe we as a television channel will provide that platform to showcase their talent to the whole country. Thank you very much to be here. And I want to thank all the singers and all the musicians who are participating in my father's. It was his dream, actually, which I'm taking forward. So I want to thank everyone who's performing today, or tomorrow, sorry, for the event. And a lot of thanks to the Colors and Mr. Raj Nayak, who has given the vision which I wanted to show to the world what my father has done in so many years. We are following his footsteps today. The entire my music company is following what he has thought so many years back. So thank you very much, Colors. Thank you very much, Mr. Raj, to take this thing forward and show it to the world. Thank you very much. हेलो एवरीबॉडी मुझे इस इंडस्ट्री में आए हुए 3 साल हुए हैं. 2012 में मिक्की डोनर रिलीज़ हुई थी. तो मेरा एसोसिएशन टी सीरीज़ के साथ 3 साल का नहीं 30 साल का है. जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं टी सीरीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ. एंड इट कनेक्टेड नॉट जस्ट विद द मासेस बट ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ 80s एंड 90s, क्योंकि उस टाइम पे पॉकेट मनी कम हुआ करती थी और टी सीरीज़ की जो कैसेट है वो पॉकेट मनी में एडजस्ट हो जाती थी. आई नॉट टेक नेम्स ऑफ अदर लेबल्स बिकॉज अदर लेबल्स वर मोर एक्सपेंसिव. मुझे अभी भी याद है कि दिल और आशिकी का कॉम्बिनेशन आया था. मिड 90s की बात कर रहा हूँ, और मैंने 2 खरीद ली थी. मुझे पता था एक मैं घिसा दूंगा, दूसरी दोबारा सुनूंगा. तो माई एसोसिएशन विद टी सीरीज इज सिंस माई चाइल्डहुड डेज एंड आई हैव लिव्ड दैट नॉस्टैल्जिया इन माई प्रीवियस फिल्म दम लगा के आयशा, जब जहाँ पर सारी कैसेट्स टी सीरीज़ की मुझे नज़र आ रही थी वाइल शूटिंग फॉर द फिल्म, दो इट्स अ यशराज फिल्म. बट I feel honored to be part of this venture, this tribute to late Shri Gulshan Kumar, who was a visionary, and he'll always be remembered as the pioneer, as a visionary of Indian music industry. And let's see you guys tomorrow night. Thank you so much. Ayushman Bhava. It's a huge, huge honor for me standing in front of all you people today. And as everyone's talking about my father, Shri Gulshan Kumar ji, आज मैं जहाँ हूँ उनकी वजह से हूँ. इस दुनिया में हूँ ऑफ कोर्स उनकी वजह से, और संगीत की दुनिया में हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की वजह से. उन्होंने बहुत सारे नए टैलेंट्स को चांस दिया है, और मैं भी उनका एक हिस्सा हूँ, उनकी एक पहचान, उनकी एक खोज हूँ.
So I'm really looking forward to performing tomorrow at Suron Ke Rang, Colors Ke Sang. And thank you, Colors, thank you for giving such a great platform to all musicians, to all the talented people who are going to showcase their talent tomorrow with their songs. And I have a special song that I will be rendering for my father. It is called Mere Papa, and it's beautifully composed by Jeet Da, beautifully written by Manoj ji. So I'm looking forward to performing that in front of all of you. Thank you. एक्चुअली मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भूषण जी को। गुलशन जी के लिए जो थीम सॉन्ग मैंने बनाया, कंपोज किया है, उन्होंने हमको मौका दिया है। एंड मनोज मुतसर जी लिखे हैं और तुलसी जी ने बहुत अच्छा गाना गाई है। और एक लास्ट में जो फिनाले सॉन्ग है, इतनी शक्ति हमें देना दाता और तुम भी जिया जाए, हम सब जानते हैं दोनों गाना, और मैंने कोशिश किया री अरेंज करने के लिए, और दैट्स इट। कल हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। नीड योर बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जहाँ तक गुलशन जी की बात आती है, डेफिनेटली उनके पहले एक दौर था और उनके बाद एक दौर था, तो वो एक मतलब एक नींव थे, एक फाउंडेशन थे जहाँ से एक पूरी नई शुरुआत हुई और संगीत को एक अलग नया दर्जा मिला। और वो जो कारवां है अब तक चलता आ रहा है, थैंक्स टू भूषण्स कंटिन्यूड एफर्ट्स। एंड आई थिंक यहाँ बहुत सारे जो भी तब्दीलियाँ, चेंजेस, जो कुछ भी होता है संगीत के जगत में, हमेशा शुरू होती है टी सीरीज़ से। सो आई थिंक सुरों के संग सुरों के रंग, कलर्स के संग का ये जो एक नया शुरुआत है, इट्स राइटली विथ टी सीरीज़। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कनेक्ट। और साथ साथ राज साहब बार बार कह रहे हैं कि नए सिंगर्स को चांस, तो मैं भी उनको कह रहा हूँ कि मैं भी जस्ट लाइक ब्रांड न्यू अब तक खुद को रखा हूँ ताकि बिल्कुल नया लगूँ। मुझे कोई बुजुर्ग या कोई पुराना नहीं बनना है, ना रहना है। सो आई वांट टू बी विद द यंगर जनरेशन, स्टे यंग एंड एंजॉय ऑल द यंग वाइब्रेंट म्यूजिक दैट्स गोइंग ऑन टुनाइट। तो उस हिसाब से हमने भी इस देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द शो टुमारो, जहाँ सारे गाने उस हिसाब से क्लासिफाई करके रखे हैं। तो मैंने मेरे दोस्त सोनू भाई से कहा कि मुझे यार वो डांस वाले सेगमेंट में ही रखना, ये रोमांटिक काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, मैं परेशान हो गया उससे। तो इसलिए वंडरफुल, जो कुछ भी होगा आप कल देखेंगे, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन वंस अगेन माय हार्टिएस्ट बेस्ट विशेस टू Suraj Nayak, to Colors, to Bhushan Kumar, to everyone. And Jeet Da के लिए Jim is probably Jim Moses या किसी का नाम होगा। I don't see him going to the gym as often, but he will, I'm sure, very soon. Wonderful. Thank you so much. Hi, it's truly an honor for me to be part of this endeavor. I just realized that this year I myself completed 10 years as an independent composer for films. And in these 10 years, I have had a very special association with T-Series with Bhushan ji. But baat वहाँ पे नहीं रुकती. I have known, actually, I have witnessed late Shri Gulshan Kumar ji personally, क्योंकि my father did a lot of work with him. And I had the opportunity of meeting him also a couple of times when I was very, very young. But obviously everybody knows that, he was a visionary, and, his contribution to the Indian film and non-film music industry is immense. But I think we should also speak about the fact that he was a very compassionate human being. This is a very honest opinion that I'm sharing, and he always, he had that very, very loving and gentle side to him that I always remember him as today. And what I'm going to do is, as all of us musicians are doing our own thing, the best that we can give is our art that we are bestowed with, and I'm going to perform a couple of my songs for him tomorrow. And I really thank Bhushan Kumar ji for making me a part of this, and Colors as well. Thank you, sir. Thank you. Hi, everyone. It gives me great pleasure and an honor to be on the stage because especially, the Malik family has been associated with Shri Gulshan Kumar and T-Series for a very long time. My father had made his acting debut in a film called Lal Dupatta Malmal Ka, which was produced by T-Series. So I'm glad that I'm taking the legacy forward of my dad and my Dada, and we're giving a very special tribute to Shri Gulshan Kumar. All thanks to Bhushan ji and Colors for putting this up. And I'm really lucky that me and my brother are getting to work with T-Series and do such great work and put up
an amazing performance tomorrow. I hope you enjoy it. Lots of love. Thank you. Thank you. Hi, I don't know what to say. It's a very emotional day for me. My whole life comes a full circle today. And all I'd like to say is very fortunate to be a part of this legacy called Gulshan Kumarji. I have so many fond memories of him. I have really enjoyed. Most of you have just heard of him. I'm one of the few people who's enjoyed his company, who's enjoyed his love, who has been showered by his protection. And I'm one person who has cried for him when we lost him. So this was a long overdue thing, and I'm glad it's happening right now. Rest, we can all speak when you want to ask some questions. I'm glad this show is happening thanks to Colors, and of course Bhushan is here and the entire team is here, and we're going to put up a great show tomorrow of everything. एक वर्ड है अद्भुत. अगर वो किसी शख्स पे इम्प्लीमेंट हो सकता है तो वो गुलशन जी ही थे, और उनके बाद कोई नहीं ऐसा. मतलब होता है ना, जैसे कोई बोलता है कि यार इसका नेचर उसके जैसे है, ये बड़ा दबंग है या ये बड़ा स्मार्ट है, ये बड़ा स्टाइलिश है, ये दोनों स्टाइलिश हैं. पर गुलशन कुमार जी का जो एक ऑरा था वो एकदम अनूठा था, और मैंने ना उसके पहले किसी को देखा, ना ऐसा कोई और बाद में देखा, ना कोई आएगा. उसके लिए बहुत इंडिविजुअलिटी चाहिए, उसके लिए बहुत इनोसेंस चाहिए और बहुत हिम्मत चाहिए. इनफैक्ट जब मैं आया था टी सीरीज़ में, तब टी सीरीज़ का बिल्कुल भी मतलब एक भी फिल्म उनके पास नहीं थी. दे हैड एक्चुअली आइसोलेटेड देमसेल्फ कम्प्लीटली. फिल्में आई हैं भूषण के आने के बाद में फ्रैंकली. उसके पहले तो बस टी सीरीज़ वॉज डूइंग देयर ओन स्टफ एंड कम्प्लीटली. एंड उस समय जो मैंने माहौल देखा है, गुलशन कुमार जी की हिम्मत, उनका अकेले चलने की जो ताकत थी, और जिस तरह वो लोगों को बड़ा प्यार से रखते थे. जब मुझे पहली बार मिले तो उन्होंने उनको अजीत कोहली जी ने बताया कि एक नया लड़का आया है, ये गाना एक्चुअली मैंने एक डमी गाया था किशन कुमार जी के लिए फिल्म आजा मेरी जान में. आग लगे सावन को करे बेचैन, तो ये गाना SP बालासुब्रमण्यम गाने वाले थे. तो ये मैंने गा दिया, और तो गुलशन जी देख रहे थे. उन्होंने जब शूटिंग के बाद देखते ना अपने थिएटर में बैठे, देखे ये कौन है जी, तो कोहली जी ने बताया ये कोई नया लड़का है. अरे कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, नया लड़का है, कोई दिल्ली से आया है, बुलाओ जल्दी बुलाओ. इतने मतलब कोई और होता है बोलता है भाई छोड़, ठीक है नया आया, अभी भीख मांगने, थोड़ा और भीख मांगने दो, थोड़ा सा और धक्के खाने दो. ही आइडेंटिफाइड कि इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ. फिर मुझे बुलाया गया, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट चीज़ देखी और बोला, वो कोहली तो कह रहे थे कि आप छोटे हैं, आप तो कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं. तो उनका ये मेरे लिए फर्स्ट डायलॉग था जो मुझे आज तक याद है. फिर मुझे कहते हैं आप चिंता ना करो, आपको मैं सपोर्ट करूँगा, आपको चिंता ना करो, मैं सपोर्ट करूँगा. और फुल ऐसा बोलने से ही आदमी की हिम्मत बन जाए. नॉर्मली हमको मिलते थे लोग, क्या है, किधर जा रहे हैं, काय को मिलने का है, इधर मिलने का है, भाई इधर जाने का, कल आने का, हफ्ते बताने का. हमको ये मिल रहे थे लोग. अचानक एक कंपनी का बॉस हमको मिल रहा है और प्यार से बोल रहा है, नहीं आओ आप, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट करेंगे आप. फिर एक बार मैं गोल्डन चर्च के बाहर बैठा, मतलब मैं एंटर कर रहा था स्कूटर में, मेरे पास तब 2 व्हीलर था, तो देखा गुलशन जी बाहर सिक्योरिटी के साथ में ऐसे बैठे हुए हैं. हाँ जी आ जाओ बेटे आ जाओ. कहाँ से हो? मैंने दिल्ली से हूँ जी. अच्छा क्या करते हो? मैंने अभी 12th पास की है, अभी यहाँ पे आया. अच्छा तो फैमिली का है? मैंने दिल्ली में है. तो बुला लो बुला लो, हम सपोर्ट करेंगे जी, आपको गवाएंगे खूब सारे गाने, बुला लो. अब ऐसा कोई आदमी बोल दे तो आदमी कितना मनोबल बढ़ता है. एंड देन ये सबको मैंने बता चुका हूँ पहले कि मैंने इनके लिए खूब सारे वर्जन्स गाने शुरू किए, रिलीजियस गाने शुरू किए, माता की भेंटें गाने शुरू की. तो गा के इंसान की प्रैक्टिस हो जाती है. और मैंने भी पूरी मतलब एक ईमानदारी निभाई इनके साथ में. मैंने सबको कहा भी हो. एक बार टिप्स में रमेश तुरानी जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने उस समय सब कंपनीज थी, वीनस टिप्स वगैरह सब आपस में दे वर कंपेरेटर्स एट दैट पॉइंट. तो रमेश जी कॉल मी अप एंड ही सेड, देखो भाई हमने तुम्हें नाजायज़ में गवाया, इसमें गवाया, खुदार में गवाया, उसमें गवाया, अब ऐसा करो कि तुम हमारे लिए भी वर्जन गाओ. तो मैंने को कहा कि सर गुलशन जी ने मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, फिर भी अगर मैं आज उनसे चीटिंग कर सकता हूँ तो कल मैं आपसे भी चीटिंग कर सकता हूँ. सो मैं उनके साथ चीटिंग नहीं कर सकता. आई विल नेवर डू वर्जन विद एनीबडी एल्स. आई विल डू फिल्म सॉन्ग्स विद यू बट आई विल नॉट डू वर्जन विद एनीवन. सो दिस वाज माय रिलेशनशिप विद गुलशन जी एंड ही रियली अप्रिशिएटेड ऑल दैट. एंड टिल द टाइम ही वाज अलाइव वी हैड अ ग्रेट टाइम. आफ्टर ही लेफ्ट we all made sure that Bhushan never felt alone, and then we had a great journey. उसके बाद में आप देख ही रहे आज वो कितने अच्छे मुकाम पे पहुँचे. उन्होंने अपने पापा की जो
बेटन था वो आगे ले जाके उसको और बड़ा किया है. सो वी वेरी हैप्पी अबाउट इट. जी कैसे इंसान थे कि जैसे वो कभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे लोग ना केवल सिंगर्स खड़े किए, कंपोजर्स खड़े किए, उन्होंने बहुत सारे डीलर्स खड़े किए. ये बिज़नेस था नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले गुलशन कुमार जी थे. ऐसा नहीं था कि वहाँ पे डीलर्स थे और मैं गलत बोल रहा हूँ, करेक्ट बोल रहा हूँ ना, कोई ये सिस्टम था नहीं. गुलशन जी ने बोला कि यार चलो तुम वैष्णो देवी में तुम दुकान लगाओ, तुमको हम पैसे देंगे, तुमको हम सपोर्ट करेंगे. तो ये केवल इस बिज़नेस को उन्होंने आगे बढ़ाया, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार गुलशन जी ने कराया था. तो इस सिलसिले में वो बहुत इंटरनल ट्रैवल करते थे, हम सुनते रहते थे, बिकॉज हमारे नज़दीकी सब थे जो उस समय उनके बहुत नज़दीकी थे, कोहली जी, सुशील. तो दे शुड कीप टेलिंग. अब ये जा रहे हैं कहीं, सपोज हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी में बैठे, रास्ते में एक कोई साधु दिख गया, नागा साधु या कोई ऐसी चौका डाल के ज़रा, और रोको रोको गाड़ी रोको. उतरे, जेब से 15,000 रुपये निकाले, 10 रुपये निकाले, दिए सर को, निकल पड़े चुपचाप. ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. कौन करते हैं? लोग पैसे बचाते हैं लोग, या फिर दान करते हैं तो फिर बता के करते हैं, हेलो मेरा क्या फाउंडेशन, मेरी ये फाउंडेशन, वो फाउंडेशन, इतना ये किया, चुपचाप. और ये मालूम नहीं पड़ता अगर उनके लोग या ड्राइवर नहीं बताते कि आज साहब ने ऐसा किया. तो वो इस तरह के आदमी थे, इसीलिए उस आदमी की इतनी इज्जत है. और इसीलिए जब वो नहीं रहे तो उनकी फैमिली को, उनकी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए सारे के सारे डीलर्स खड़े थे. जैसे ये हमारा फैमिली है, विद वेंजेंस. विनोद तो गवाह इस बात के कि जब वो नहीं रहे तब नन्नू भूषण बहुत छोटे थे उस समय, बहुत एकदम यंग आए थे, पर इनके साथ देने के लिए सारे डीलर्स खड़े रहे. जब हमारे एल्बम दीवाना आए तो उन्होंने वेंजेंस के साथ में उसको बेचा है. और जो भी एल्बम उसके बाद में है वो क्यों? अपने पापा के सुकर्मों की वजह से. अगर पिता के दुष्कर्म होते तो बेटा भुगतता. पिता इतने दानी, इतने पवित्र आदमी थे, इतने अच्छे आदमी थे कि उनकी फैमिली को उनके ना होने के बाद भी उनके ना होने की कमी महसूस नहीं हुई.